Farhan, start paper 1, multiple choice question on AS level 9701/12, May, June 2022. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Let's talk about question number 1. Equations involving 4 enthalpy changes are shown. Okay, I've noted electron. That means if this is first ionization energy, right? Similarly, we have gaseous atom. It is converting into gaseous 2+ ions by removing 2 electrons. Iska matlab, it is sum of first ionization energy as well as second ionization energy. Now the next, it is solid. It is converted into all of gaseous atom. It is split into 2 by 2 electrons. It is the sum of ions. Then for energy. All right. Now let's talk about the question. Which equation represents the second ionization? Guys, अगर मैं इन की वैल्यू, so मुझे तो इसकी second ionization energy चाहिए. So this is the sum of first, second. This is only first. तो अगर मैं इन दोनों को subtract कर दूं तो मुझे ionization energy की वैल्यू मिल जाएगी, right? So जाहिर सी बात है अगर मैं x w से तो I will get second ionization energy की वैल्यू क्योंकि C, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. रिपीट अगेन, अगर मैं इन दोनों को subtract करूंगा तो मुझे atomization की वैल्यू मिलेगी. And मुझे चाहिए second ionization energy of sodium. It is the first ionization energy. It is sum of first and second. So if I'll subtract both these values, I will get second ionization energy. I hope it makes sense to you. Next question is basically the question refers to isolated gaseous atom in the ground state. Ground state is the low energy state. Okay, in which atom all electrons are paired. All electrons are paired. All electrons are paired. All electrons are paired. So bromine belongs to group 17, so it has 7 valence electron. S orbital में 2 electrons होंगे. And P में obviously valence shell में 7 है तो S orbital में 2, P में 5 होंगे. P में 5 है तो obviously यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जबकि वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड. सही है. सल्फर की बात कर लेते हैं. सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब s ऑर्बिटल में 2 और p में 4 होंगे. अगर p में 4 हैं तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी unpaired electrons है जबकि एग्जामिनर paired पूछ रहा है. And I think silicon is also incorrect and therefore A is going to be the right answer. Why silicon is incorrect? इसको भी देख लीजिए. Silicon belongs to group 14, which means it has 4 valence electron. S orbital में 2 और P में 2 होंगे ground state पे. Okay, तो इसके पास भी unpaired electrons हैं, ये भी गलत. इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी गलत. इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी गलत. बेरियम is going to be the correct option because barium found in group 2 of the periodic table, which means it has 2 valence electron और वो 2 electrons actually s orbital में होंगे. इसका मतलब सारे के सारे paired होंगे बेरियम के अंदर. All right, I hope it makes sense to you. मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया और मैंने शॉर्टकट कुछ इस तरह से अप्लाई किया था कि मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बजाय वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को प्रायोरिटी दी और मैंने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू वर्किंग करके डिटरमिन कर लिया कि मेरे लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या होगी आंसर तक पहुंचने की. ठीक है. आई होप यू गेट द लॉजिक. ओके, व्हिच सैंपल कंटेन द मोस्ट आयोडीन. मोस्ट आयोडीन का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे. ओके, सो
काफी लेंथी वर्किंग है बट जगह बहुत कम है हमारे पास। आई विल ट्राई टू फिक्स इट। देखते हैं। कैल्शियम आयोडाइड का जो एम आ रहा है हमारे पास वो 293.9 है। सो मैं एक्चुअली मोल्स ऑफ कैल्शियम आयोडाइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 293.9 से। सो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। 1 divided by 293.9 is going to be 3.40 into 10 to the power minus 3 moles, right? अब जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले में 2 आयोडीन एटम्स है, तो 1 मोल में 2 आयोडीन एटम्स है, तो इतने मोल्स में कितने आयोडीन एटम्स होंगे? जगह बहुत कम है। तो ये हो जाएगा 3.4। I don't have any space right now. It is very difficult. What we can do is जगह नहीं है। Wait. Let me solve this question. I hope copy हो गया हो। My goodness, copy नहीं हुआ। Wait, स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका एंड ऑब्वियसली फिर इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है। What's going on? I don't know what's going on. Okay, ये कॉपी हो गया। आई होप कि हम ओके फाइनली। चलो तो अब यहाँ देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ए की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम आयोडाइड डिटरमिन करता हूँ। तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा कैल्शियम आयोडाइड के एमआर से विच इज 293.9। तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे और मोल्स में मेरे पास 3.40 into 10 to the power minus 3 moles, right? कैल्शियम आयोडाइड में 2 आयोडीन एटम्स हैं, तो 1:2 का रेशो है। अगर आपने 3.40 into 10 to the power minus 3 moles कैलकुलेट किया है, तो मोल्स ऑफ आयोडीन कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, so it's going to be 6.80 into 10 to the power minus 3 moles. सही है। थर्ड स्टेप, 1 mole equals to 6.02 into 10 to the power 23. So if you have 6.80 into 10 to the power minus 3, तो बताइए कितने होंगे? तो multiply 6.02 exponent 23, so it's going to be 4.09 into 10 to the power 21 atoms। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए था। इसी तरह से हमने बी की वर्किंग करनी है, इसी तरह से हमने सी की वर्किंग करनी है। लेकिन हम चाहें तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं ना, वे कि मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है मोल्स आएंगे, और जो मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि 2 एटम्स हैं, और जो भी मोल्स आएंगे उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू से। तो मैं अब बी के लिए इसी को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि मोल्स आयोडीन एटम्स की बात करनी है हमने, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पोटेशियम आयोडाइड का एमआर होता है 166.0, तो मोल्स आ गए। और क्योंकि एक ही एटम है तो इनटू 1 करूंगा, और जो भी मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो कांस्टेंट से विच इज 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 166 इज गोइंग टू बी दिस, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 से।
So it's going to be 3.62 into 10 to the power 21 atoms. ठीक है, ऑल राइट। कोई शॉर्टकट नहीं है, सब इसी तरह से करना पड़ेगा आपको। दोबारा से आयोडीन एटम्स हमने डिटरमिन करने हैं ऑप्शन सी के लिए। तो आपके पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम आयोडाइड है। सोडियम आयोडाइड का एमआर है 149.9। इसको डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आएंगे, जो मोल्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ एक आयोडीन एटम है, और 2 मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 से, तो आपके पास आयोडीन एटम्स आ जाएंगे। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 149.9 into 6.02 exponent 23 is going to be 4.01 into 10 to the power 21। सही है, ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। आई होप हमने कोई गलती नहीं की हुई हो। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम आयोडाइड का एमआर है 144.9। ये हो जाएगा 144.9 into 1, क्योंकि एक ही आयोडीन एटम है, into 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 144.9 this into 6.02 exponent 23। तो ये हो जाएगा 4.15 into 10 to the power 21। अच्छा जी, मसला ये है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये भी 21 है। तो ये है 4.1, ये भी 4. ये 4.1 राउंड ऑफ करूं, ये 4.0 है, ये 4.2 हो जाएगा, और ये 3.62। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 4.1 into 10 to the power 21। ये तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ राउंड ऑफ करके 3.6 into 10 to the power 21। ये हो जाएगा 4.0 into 10 to the power 21, और ये हो जाएगा 4.2 राउंड ऑफ करने के बाद into 10 to the power 21। तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है वो डी में है, व्हिच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। आप चाहें तो आप यहाँ तक भी वर्किंग करके कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोल्स जिसमें आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन एटम्स होंगे। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं कि द हायर द नंबर ऑफ मोल्स द मोस्ट आयोडीन द एटम्स सैंपल कंटेन। ओके, ये भी कर सकते हैं आप। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आपके पास है question number 4। When a small sample of hydrocarbon Q is completely combusted, it produces 3.52 gram of carbon dioxide and 1.44 gram of water. What could be the structure of hydrocarbon Q? तो मुझे एक्चुअली मास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, मुझे मास गिवन है वाटर का। मैं सबसे पहले दोनों के मोल्स निकालता हूँ। तो मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता हूँ। ये है हमारे पास 3.52। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमआर 44 से। 3.52 डिवाइडेड बाय 44 इज गोइंग टू बी 0.08 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 18, बिकॉज 18 इज द एमआर ऑफ वाटर। ये हो जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 18 इज गोइंग टू बी 0.08 मोल्स। ओ wait, okay. 3.52 divided by 44 is going to be 0.08 moles। दोनों के मोल सेम है, सही है। ओके, अब इसके मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोल्स ऑफ कार्बन भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ से मास ऑफ कार्बन निकाल लेता हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए जो मोल्स ऑफ कार्बन है उनको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो इंटू 12 करो 0.96 ग्राम। सही है, ये मोल्स ऑफ वाटर हैं। सही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं।
तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 0.08 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और फिर मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो वेट वेट वेट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे आपके पास, तो 0.16 आई थिंक, 0.08 into 2 is going to be 0.16 moles. अब आप जानते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए आपको, तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए ऑब्वियसली 0.16 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो ये मोल्स मास में कन्वर्ट हो जाएंगे. आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू. सो नाउ वी नो द मास ऑफ कार्बन, वी नो द मास ऑफ हाइड्रोजन, वी कैन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला. तो कार्बन का मास है मेरे पास 0.96, हाइड्रोजन का मास है 0.16, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.16 मोल्स, और इसको डिवाइड करोगे 12 से तो ये हो जाएगा आपके पास 0.08 मोल्स. और 0.08 मोल्स इज द लीस्ट वैल्यू. आप डिवाइड कर दो इसको ऑन बोथ द साइड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2. तो आपको और मुझे मिलकर ये डिसाइड करना है कि CH2 है कहाँ पर. ठीक है, दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. सबसे पहली बात, इसमें टोटल 6 कार्बन है, इसमें टोटल 6 हाइड्रोजन है. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 6 से तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH. ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मुझे तो CH2 चाहिए. आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है एंड ऑब्वियसली 16 हाइड्रोजन है, राइट. तो अगर 8 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 8 से डिवाइड करके CH2 बनेगा, और यही मेरा एक्चुअली आंसर भी होगा क्योंकि ये CH2 टैली कर गया है. ठीक है, लेकिन हम C को भी देख लेते हैं. C में हमारे पास फॉर्मूला कितना है, 1 2 3 4 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट. सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा C2H. तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत. D को देखें, ये हो जाएगा C6H10. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो ये हो जाएगा C3H5. तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला हमारा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है. तो राइट आंसर इज बी, बिकॉज CH2 का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिर्फ आपके पास टैली हो रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज ethane and ethene are both hydrocarbon molecules. Hydrocarbon consists of carbon and hydrogen only. Okay, now what is the feature of both molecules? Both. अच्छा, पहली बात, ethane C2H6 होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका एंगल होगा 109.5 डिग्री एंड ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. इथीन इज C2H4, ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी, इसका एंगल 120 डिग्री होगा, इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है और इसकी टेट्राहेड्रल है. सो ऑब्वियसली दोनों के लिए वो कह रहा है ना, वो कह रहा है बोथ. तो इसका मतलब ऑप्शन है इनकरेक्ट क्योंकि एक टेट्राहेड्रल एक प्लेनर है. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट क्योंकि एक 120 एक 109.5 डिग्री है. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट डजंट हैव एनी पाई बॉन्ड. लेकिन आप जानते हैं कि इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, तो व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 6. एलिमेंट J and L are both in group 15. तो पहली बात, अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी S2P3. ओके, J and L each form a gaseous covalent hydride in which their oxidation number is -3.
ग्रुप 15 के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फॉस्फोरस। और नाइट्रोजन जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है जिसको आप कहते हैं अमोनिया विच इज अ गैस। फॉस्फोरस भी कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है जिसको कहते हैं CH3 फॉस्फाइन, ये भी गैस होता है। ठीक है, और इन दोनों में नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, जो वो कह रहे हैं आपसे। ठीक है, in the liquefied form these hydrides significant hydrogen bonding occurs only in the hydride of L। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्राइड ऑफ L है वो बेसिकली हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अमोनिया एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉस्फाइन में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, सो इसका मतलब ये जो L है ये आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड है, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P3। तो S2P3 ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। L जो है वो नाइट्रोजन होगा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ J एंड ऑब्वियसली आर्सेनिक होगा, मैंने फास्फोरस लिया हुआ है तो फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होता है। ओके, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्योंकि मैंने फास्फोरस लिया है तो फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होता है जिसका सिंबल AS है। ठीक है, वो कह रहे हैं which gas will behave least like an ideal gas at 150 डिग्री सेल्सियस and 101 किलोपास्कल। लीस्ट लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, लीस्ट, लीस्ट कह रहे हैं वो, इसका मतलब मोस्ट डेविएशन होगी। मोस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा, मोस्ट डेविएशन उसकी होती है जिसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ये स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको सिर्फ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करूंगा जो कि डोमिनेट कर रही होती है, राइट। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, one lone pair involved in hydrogen bonding। ठीक है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ एक लोन पेयर होता है उसकी वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फ्लोरीन और क्रिप्टन दोनों में वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि नॉन पोलर हैं, एंड नॉन वैन डर वाल फोर्सेस आर वीकेस्ट वन, वीकर फोर्सेस हैं। स्टीम, स्टीम में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सो 2 लोन पेयर involved in hydrogen bonding। सही, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक बात तो तय हो गई कि बी गलत है और सी गलत है। अब कंपटीशन ए और डी में है और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट यहाँ पर एक लोन पेयर की वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ 2 लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, व्हिच इज व्हाई यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जिबिट्स stronger force of attraction because of hydrogen bonding due to two lone pairs. Okay. Next is when an evacuated glass bulb of volume 200 centimeter cube is filled with a gas at 300 Kelvin and 101 kilopascal। तो भाई आपको 101 kilopascal है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 101,000 पास्कल। ठीक है, ये टेम्परेचर है, इसको एज इट इज रखना है। ये प्रेशर है आपका, ये 200 cm क्यूब है, ऑब्वियसली मैंने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये मास है गैस का, आइडेंटिटी ऑफ गैस पूछ रहे हैं, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई कर देते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी,
हम सब जानते हैं कि n जो है वो मास अपॉन mr है, RT। मुझे mr कैलकुलेट करना है ताकि मैं आइडेंटिटी डिटरमिन करूं, एंड फॉर दैट ये हो जाएगा mRT अपॉन PV। मास मेरे पास है 0.68, R की वैल्यू नोन होती है, फिक्स होती है 8.31, टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 300 केल्विन, प्रेशर मेरे पास है 101,000 किलो पास्कल। ओके, 101,000 पास्कल इनटू वॉल्यूम दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू द पावर -6। तो मैं यहाँ से एम आर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं यहाँ से एम आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तकरीबन 83.9। तो 83.9 जो है वो पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाएंगे तो वो सिर्फ बी का मिलेगा आपको। सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आर्गॉन का 40 होता है, नेऑन का 20 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टन से मैच करेगी। ओके, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं बात को। नेक्स्ट, the standard enthalpy change of formation of NO2 is this. The standard enthalpy change of formation of N2O4 is this. What is the standard enthalpy change for reaction? Okay, so हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। 2NO2, my goodness, 2NO2 एरो N2O4। जाहिर सी बात है फॉर्मेशन का डेटा गिवन है आपको, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी हेसिलो साइकिल। ये हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक एरो अपवर्ड, दूसरा एरो अपवर्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाइए। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। NO2 की वैल्यू आपको दी हुई है +33.2, क्योंकि 2 मोल है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। N2O4 की वैल्यू दी हुई है +9.2। ये दोनों वैल्यूज क्लॉकवाइज से मैच हो रही हैं इसलिए प्लस, ये वैल्यू क्लॉकवाइज से मैच नहीं हो रही इसलिए माइनस, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा x प्लस 33.2 इंटू 2 माइनस 9.2 इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 33.2 इंटू 2, 33.2 इंटू 2 माइनस 9.2, ये हो जाएगा माइनस 57.2 किलो जूल्स पर मोल। तो माइनस 57.2 इज गोइंग टू बी Na। ठीक है, okay. Now the next question number 10 is separate sample of 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube NaOH are added to each of 3 different acids solution as described. The temperature of each solution was 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin, before mixing. Before mixing, हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और अच्छा ठीक है उसने लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। सो व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली रिएक्ट टुगेदर ड्यू टू कंप्लीट ionization, neutralization is always highly exothermic according to my lecture. But whenever weak acid is used, because of partial ionization, neutralization is always less exothermic. Okay, याद रखिएगा कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन तीनों केसेस के अंदर, तीनों सैंपल्स के अंदर सेम ली हुई है। ठीक है, ओके, सो आगे पढ़ते हैं। which statement describe the temperature rise that occurs on mixing each of these 3 acids separately with NaOH? वो कह रहे हैं the temperature rise in all 3 mixture is the same. That's absolutely incorrect, क्योंकि जब वीक एसिड होता है, मैंने अभी कहा आपको पार्शियल आयनाइजेशन होती है, न्यूट्रलाइजेशन लेस एक्सोथर्मिक होगी, तो सेम तो नहीं हो सकती। तो आप बोलेंगे डेल्टा HN is less exothermic for weak acid. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। The temperature rise using H2SO4 and HCl is the same. सेम तो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि H2SO4 gives 2 hydrogen ion in aqueous medium and it gives only 1 hydrogen ion in aqueous medium.
So जाहिर सी बात है यहाँ से 2 moles ऑफ वाटर बनेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन ट्वाइस होगी, यहाँ से 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन 1 टाइम होगी, तो सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं टेम्परेचर राइज यूजिंग इथेनिक एसिड इज ग्रेटर देन, नो 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 नो, बिकॉज इथेनिक एसिड वीक एसिड है, it is weak acid partly ionizes in aqueous medium, okay, partly ionizes in aqueous medium, तो इसका मतलब जो ग्रेटर है ना वो नहीं हो सकती, तो ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर राइज अकर यूजिंग H2SO4, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इससे 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, बिकॉज ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए टेम्परेचर राइज भी इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं 11 में क्या कह रहे हैं वो हमसे। NCl3 reacts with water according to this equation. The oxidation state of nitrogen doesn't change in this reaction. बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, सही है। Which statement is correct? अच्छा, मसला ये है यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो जाहिर सी बात है ये -1 से +1 जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, इफ इट इज ऑक्सीडेशन और वो कह रहा है रिड्यूस, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, सही है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, वो कह रहे हैं क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, बात तो सही है क्योंकि -1 से +1 जा रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इस NCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं क्लोरीन की, करके देखते हैं। तो NCl3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लें, क्लोरीन को 3x ले लो, नाइट्रोजन जो है वो -3 है, इक्वल्स टू 0 होगा, देन x इक्वल्स टू +1, तो इसका मतलब ये भी +1 ये भी +1, तो इसका मतलब क्लोरीन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ना ही रिड्यूस हो रहा है। चलो ये ज्यादा सेंसिबल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। शूट, ओके, हाइड्रोजन, वेट हाइड्रोजन से रिलेटेड भी बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी गलत। राइट आंसर ऑब्वियसली इज डी, बिकॉज इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है, ओके। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in which row do the oxidation number of vanadium increases? वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने इंक्रीज करना है। अगर मुझे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना है तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। अगर आप V2O3 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वेनेडियम 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 ऑक्सीजन एटम है, इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा, ठीक है। ये V2O3 हो गया। उसके बाद आपके पास है VO2+, तो अगर मैं वेनेडियम को x ले लूं और ऑक्सीजन -2 है इक्वल्स टू +2, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +4, राइट। फिर उसके बाद VO3- भी है आपके पास, तो वेनेडियम को x ले लो, ऑक्सीजन -2 टाइम्स 3 बिकॉज 3 एटम्स हैं, इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू +5। और क्या है मेरे पास, मेरे पास VO43- भी है, तो वेनेडियम को x ले लो, ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू
4 2 is 8 plus 8 minus 3 plus 5. ओके VO2 प्लस लिया है मैंने, नहीं लिया। VO2 प्लस देखो इसमें ऑक्सीजन, सॉरी वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन -2 times 2 equals to +1, then X equals to +5. एनीथिंग लेफ्ट? VO4 -3 भी है, अच्छा वो हो गया है। VO2 प्लस भी हो गया है, चलें। आई थिंक VO4 कर लिया हमने, हाँ वो भी कर लिया है, चलें। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लग इन करते हैं जल्दी जल्दी। VO3 में यहाँ +5 है, ये भी +5 है, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई, इसलिए ये गलत, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। ऑलराइट, ये मेरे पास +4 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर मेरे पास +3 है, तो +4 से +3 यानी ज्यादा से कम हो रहा है, तो ये भी गलत। ये है मेरे पास +3, इसमें मेरे पास है +4, इसमें मेरे पास है +5, एंड ऑब्वियसली ये कम है, ये ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब C is going to be the correct answer. Right guys, let's start question number 13. A synthesis for methanol is shown, and the synthesis has delta H negative. That means forward reaction is exothermic. So अगर forward reaction exothermic है, तो obviously backward reaction is going to be endothermic. Now the question is, which condition would produce the greatest yield of methanol at equilibrium? अगर मुझे इथेनॉल ग्रेटेस्ट यील्ड चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर मुझे मेथनॉल की यील्ड इंक्रीज करनी है, तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड सो यील्ड ऑफ मेथनॉल इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर कहां पर कम है? टेम्परेचर मेरे पास बी में कम है, टेम्परेचर मेरे पास डी में कम है। ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हमने ये किस को सोचकर ऑप्ट किए, बी और डी। इफ we decrease the temperature, in exothermic reaction, equilibrium favors towards right hand side, hence yield increases, hence yield of methanol increases. Okay, now we have pressure, high रखना है या लो, ये देखना है। so ये भी मेरे पास गैसियस स्टेट में है और ये भी मेरे पास गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 4। अब जाहिर सी बात है, वाटर जो है वो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि वो किस में है, राइट? लेकिन मुझे पता है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, और मेथनॉल जो है वो भी आपके पास लिक्विड स्टेट के अंदर है। सो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पर 0 मोल्स हैं, क्योंकि सारे के सारे लिक्विड स्टेट के अंदर है। सो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, increasing the pressure favors equilibrium towards that side where we have less number of moles of gaseous substances. इसका मतलब मुझे प्रेशर हाई रखना है, हाई प्रेशर यहाँ है, हाई प्रेशर यहाँ है, and therefore B is going to be the correct option. Okay, now in the next question,
hydrogen and iodine can react reversibly to produce hydrogen iodide. The equation is shown. Okay, मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो क्वेश्चन. ये हो जाएगा H2 plus I2 reversible sign 2HI. Okay. 4 mole of hydrogen gas and X moles of iodine vapor are mixed in a sealed container of volume 1 dm cube at temperature 460 Kelvin. इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन के 4 हैं, ये X है और ये 0 है. ठीक है. The system is allowed to reach equilibrium. The equilibrium mixture contains 2 mole of hydrogen iodide. So equilibrium में मेरे पास 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के. ओके, ऑलराइट. ठीक है बेटे. इनिशियली 4x0, इक्विलिब्रियम पर ये 2 मोल हैं. अच्छा, एक चीज, मैं यहां से रिएक्टेड मोल्स कैलकुलेट करना चाहता हूं. रिएक्टेड मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर ये 2 मोल्स बने हैं, जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है. तो अगर ये 2 मोल बना है तो इसका मतलब मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, राइट. तो ये 1 मोल आ जाएगा. तो रिएक्टेड मोल्स मेरे पास 1 हो गए. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. बेटा ये 2 मोल है और ये 1 मोल है. अगर ये 2 बना है तो इसका मतलब यहाँ से 1 मोल रिएक्ट हुआ होगा ना. इसका मतलब रिएक्टेड मोल्स अब कितने हो गए? 1. मैं यहाँ से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम निकाल लेता हूँ. इनिशियली मेरे पास 4 हैं, उसमें से 1 मोल रिएक्ट कर गए, तो बच कितने जाएंगे? 3.0 मोल. तो 3.0 मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये आ गया आपके पास. अगर यहाँ से 1 मोल रिएक्ट हुआ है तो यहाँ से भी 1 मोल रिएक्ट हुए होंगे. तो मोल्स ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम निकालने मैंने यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास x इनिशियली थे, उसमें से 1 मोल रिएक्ट हो गए, तो बच इतने जाएंगे. तो ये हो जाएगा x-1. ठीक है. मुझे इसको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन सबको 1 से डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज 1 dm क्यूब हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट 460 इज 4. तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन है. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं यहाँ पर. Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट है मेरे पास 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम. ठीक है, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं. जो भी मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं. ऑलराइट. ठीक है. डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय x-1 हो जाएगा आपके पास. ठीक है. और ऑब्वियसली Kc की वैल्यू कितनी है? 4. तो ये हो जाएगा 4. ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर ओवर 3 टाइम्स x-1. इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं यार, ये ज्यादा बेहतर है. सही है. सही है. तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 1/3 + 1. और अगर 1/3 + 1 आ रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 × 1/3 and that means 1.33. Okay, so right answer is going to be C. I hope it makes sense to you. Next, question number 15. Question number 15 में वो कह रहे हैं हमसे a large amount of N2O decomposes into nitrogen gas and oxygen gas in the presence of a tiny amount of gold foil catalyst. ठीक है. The gold foil provides a solid surface on which the catalyzed reaction takes place. Okay. The graph shows the concentration of N2O against time as it is decomposed. The graph is a straight line.
Which row describe the change in rate of reaction as N2O decomposes from 0 to 10 minutes? ओके ये अहम बात है, दो तीन चीजें बहुत पॉइंटर्स बहुत अहम है यहाँ पर। सबसे पहली बात कि गोल्ड फॉयल प्रोवाइड्स अ सॉलिड सरफेस एरिया, जबकि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो N2O गैस फॉर्म में है। इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल है। सही। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O डिकम्पोजेस फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स, यानी यहाँ से यहाँ तक जब आप जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज क्या है। तो आप जानते हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और मैंने क्लास में बताया था कि जब ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है इसका मतलब रेट कांस्टेंट होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एरिया तो आपको पता चल गया कि क्या है। सेकंड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर गोल्ड फॉयल कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सेम अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एडिंग मोर गोल्ड फॉयल कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यार देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, lowers the activation energy। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड फॉयल को ज्यादा ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको ज्यादा सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करेगा कैटलाइज रिएक्शन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उस सेंस में क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा यहाँ भी है और ज्यादा यहाँ भी है, तो राइट आंसर इज ए आई बिलीव। ठीक है, तो हम ये पॉइंट भी लिख देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एडिंग मोर गोल्ड फॉयल increases the solid surface area for reactants to absorb on it. Hence, rate of decomposition increases. Okay. Okay. Next question is 16. The Haber's process for the manufacture of ammonia is represented by the equation shown. आप जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। वो कह रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। तो जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है टेंपरेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू किस तरह से हमने इसको जज किया है।
नहीं, टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, इसका मतलब डी तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और सिर्फ फॉरवर्ड इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ बैकवर्ड भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो इट मूव्स ऑन बोथ द साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। तो फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी बढ़ेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17. Ammonia aqueous is added to separate sample of NaCl, MgCl2 and barium chloride and SiCl4. Under the conditions of this experiment, only 2 samples will produce a white precipitate with aqueous ammonia is added. What are these 2 samples? Okay. Okay, aqueous ammonia. Aqueous ammonia. तो सबसे पहले तो aqueous ammonia को डील करते हैं. Aqueous ammonia का मतलब होता है ammonia in water. और मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब अमोनिया को आप वाटर में प्लेस करते हो तो इट आयोनाइजेस इनटू इट्स अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ऑब्वियसली ये कैटाइन है, ये एनाइन है, ये सारे के सारे कैटाइंस हैं. ऑब्वियसली इन कैटाइंस के साथ अमोनियम आयंस रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन करेगा. ठीक है. प्रेसिपिटेट्स की बात कर रहे हैं. प्रेसिपिटेट्स की बात कर रहे हैं. अच्छा, पहली तो बात ये कि सी गलत और डी गलत. क्यों? इसलिए क्योंकि ऑल सोडियम salts are soluble in water, तो precipitates नहीं बनेंगे. All sodium salts are soluble in water. ये तो हो गई जजमेंट हमारी कि सोडियम तो हमने निकाल दिया यहाँ से, ये तो गलत हो गया. ठीक है. अब अगर हम बात करें SiCl4 बेरियम क्लोराइड की, ऑप्शन ए भी गलत, बिकॉज बेरियम क्लोराइड को अगर मैं एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करवाऊं तो इट विल टर्न टू बेरियम हाइड्रोक्साइड. और आप जानते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सॉल्यूशन होता है. और आप ये भी जानते हैं कि ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस सॉल्यूशन है, इट हैज अ pH ऑफ 14 बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है. इसका मतलब ये इनसॉल्युबल होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. अब बी कैसे है इसको देख लो. अगर मैं लेट सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहा हूं और उसको मैं हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ ट्रीट करवा रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे. सही है. ऑलराइट. सो इसी तरह से ये है आपके पास SiCl4. अगर मैं इसको हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SiOH टेकन 4. इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, लेकिन ये फर्दर डिहाइड्रेट होकर SiO2 में चला जाता है, तो इसके भी वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. Therefore, B is going to be the right answer. Question number 18. Why is the ionic radius of sulfide ion larger than the ionic radius of potassium ion? अच्छा जी, सल्फाइड आयन और पोटेशियम आयन की बात कर रहे हैं. तो सल्फर है आपके पास S2 माइनस, इसका एटॉमिक नंबर 16 है. इसका मतलब इसमें 16 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पोटेशियम आयन की बात करें तो ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें 19 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. आप नोट करें इन दोनों में नंबर ऑफ शेल्स सेम है. यानी अगर मैं ओ लेवल केमिस्ट्री की बेस पे बात करूं तो ये हो जाएगा 2 8 8. और अगर मैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल्स सेम है 2 8 8. ठीक है. According to O-level chemistry, both of them have same number of shells because number of electrons दोनों के सेम है. ठीक है. इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, और इसके ऊपर +1 चार्ज है, बिल्कुल सही बात है. तो अगर चार्ज 2 माइनस है और चार्ज +1 है तो बात तो बिल्कुल ठीक है ये. लेकिन चार्ज 2 माइनस होने से और +1 होने से होगा क्या, ये पिक्चर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, which is why D is incorrect. Okay. Next, ionic radius always decreases when increasing atomic number. Not really. Not really.
ऐसा हमेशा तो नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। आयनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आप नोट करें, अगर मैं आपको याद करवाऊं, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन की हुई है क्लास में कि ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है सिलिकॉन। तो अगर आयनिक रेडियस तो डिक्रीज होगा यहाँ पर, आप ट्रेंड देख लीजिएगा। बल्कि मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ जो मैंने क्लास में करवाया आपको, वेट करें। वो ट्रेंड मैंने ये करवाया आपको, ये एटॉमिक नंबर 11 है, ये 14 है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं, और ये 17 है। तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है इस तरह, और फिर ये 17 है, 16 है, 15 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ये इंक्रीज होता है। अगर आपको याद आया तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, हमेशा नहीं होता। फिर वो कह रहे हैं पॉजिटिव आयंस ऑलवेज हैव अ स्मॉलर रेडियस देन नेगेटिव आयंस। मसला ये है कि पॉजिटिव आयंस का स्मॉलर रेडियस होता है हमेशा नेगेटिव आयंस से। कह तो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे ये थर्ड पीरियड के अंदर है और ये फोर्थ पीरियड के अंदर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ शेल चेंज हो रहा है। तो जब शेल चेंज होता है तो जाहिर सी बात है हमेशा पॉजिटिव आयन स्मॉलर तो नहीं होगा नेगेटिव आयन से। ऑलराइट, इस केस में देख लीजिए दोनों में ये पीरियड 3, ये पीरियड 4, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ शेल सेम है, तो सेम रेडियस तो हमेशा नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि ठीक हो। आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट सी। द पोटेशियम आयन हैज मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस देन अ सल्फाइड आयन। हाँ ठीक है, मैंने ये बात आपको कही हुई है कि इसमें 16 प्रोटॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से इसका आयनिक रेडियस बिगर होगा। That's what we have done in the class. इसमें 19 प्रोटॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सपीरियंस करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम है, which is why C is going to be the right answer. Okay. Next is question number 19. Which graph correctly shows relative electron negativity plotted against relative atomic radius for the elements sodium, magnesium, aluminum, and silicon? आप जानते हैं कि across the period electron negativity की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि across the period atomic radius decreases। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन का रेडियस सबसे छोटा होगा और सोडियम का सबसे ज्यादा। तो सिलिकॉन का रेडियस सबसे छोटा है और सोडियम का सबसे ज्यादा, तो एटॉमिक रेडियस पे तो ये बिल्कुल फिट हो गया है। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि है, उससे कम एल्यूमिनियम की होगी, उससे कम मैग्नीशियम की होगी, और सबसे कम सोडियम की होगी। तो आई थिंक ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बट मैं बी भी पढ़ लेता हूँ। इसमें सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे कम और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, सोडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम। तो ये ट्रेंड एक्चुअली फॉलो कर रहा है, लेकिन हम बी को भी देख लेते हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसकी सबसे कम है, इसका मतलब ये गलत। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत। और सोडियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे कम होता है, आई मीन सबसे ज्यादा होता है। ओके ओके, इस एक मिनट, सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस भी सबसे कम है, ये ठीक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, व्हिच इज व्हाई रॉन्ग। सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम का कम, फिर एल्यूमिनियम का कम, सिलिकॉन का कम होना चाहिए था लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया, व्हिच इज व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग। So I think A is going to be the right answer. That's the only sensible option we have. Okay. Question number 20. The table gives information about calcium carbonate and calcium hydroxide. Which row is correct?
Calcium carbonate is more soluble in water than calcium hydroxide. Wrong. Oh, C भी गलत, D भी गलत, ये दोनों ठीक है. Because calcium carbonate is insoluble in water. The calcium carbonate insoluble in water. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है. Okay. Next, calcium hydroxide can be manufactured using calcium carbonate as a starting material. That's right. That's right. The right answer is B. Why? Why? Because आप calcium carbonate लें, उसको heat करें, so it will turn to calcium oxide and carbon dioxide. जो calcium oxide है, उसको water में place करें यहाँ, और ये convert हो जाएगा calcium hydroxide में. सही है? Question number 21. Q is group 2 metal. Okay. Q जो है वो group 2 का metal है. An excess of carbonate is added to H2SO4 followed by filtration. A sample of QSO4 is then obtained by evaporation of the filtrate. What could be the identity of Q? Option C is incorrect. Because अगर सिर्फ कैल्शियम का ही होगा कार्बोनेट तो फिर आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते. फिल्ट्रेशन का सेंस शोज कि भाई एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल है. दो चीजें ध्यान में रखो. अगर मैं इस QCO3 को H2SO4 से रिएक्शन करवाता हूं तो ये सल्फेट बनाएगा, यानी ग्रुप 2 मेटल सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप solubility of group 2 carbonates decreases. सही है. तो ये भी गलत, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल, कैल्शियम भी इनसॉल्युबल. सही है. जबकि मैग्नीशियम सॉल्युबल होता है, तो यू कैन नॉट डिटरमिन कि व्हिच वन इज दिस. ठीक है. एक पॉइंट तो याद है. दूसरा पॉइंट आपके पास है, क्योंकि सल्फेट्स बनाए तो डाउन द ग्रुप solubility of sulfates decreases. ठीक है. इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल होगा और इसका हमें फिल्ट्रेट मिलेगा जिसको हम इवेपोरेशन करेंगे और क्रिस्टलाइज कर लेंगे. कैल्शियम का जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल होगा, ये रेजिड्यू की फॉर्म में आपको मिलेगा, तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. सो आई बिलीव राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ओके. बैरियम और कैल्शियम, बैरियम और कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, बैरियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता है, बैरियम सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता है, व्हिच इज व्हाई आप फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते बी के ऑप्शन में. ठीक है. ये ध्यान में रखिएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. Y, X and Z are three elements in group 17. X2 has weaker covalent bonds than Y2. इसका मतलब ये हुआ कि X2 is below than I2. Below than Y2. ठीक है.
x2 is lower than y2। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक एक इम्पैक्ट थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। अगर आपको याद है, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप जानते हैं ये वीकर होता है और ये स्ट्रॉन्गर होता है। सही है। तो अगर वो कह रहा है कि x2 हैज वीकर कोवलेंट बॉन्ड देन y2, तो इसका मतलब ये आपका x हो गया और इन तीनों में से कोई एक y होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि x2 इज लोअर देन y2। ठीक है, सो x2 इज लोअर देन y2। चलो, एक y2। ठीक है, एक पॉइंट तो मेरा याद है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। x2 has a stronger instantaneous dipole induced dipole forces between its molecules than Z2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्सेस ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x2 is lower than Z2। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट आ गया। थर्ड देखते हैं। y2 is a stronger oxidizing agent than Z2। तो हम कह सकते हैं कि y2 is above Z2। तो अगर y2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप जानते हैं कि ओके, तो एक बात तो तय हो गई कि सबसे ज्यादा जो वैन वाल फोर्सेस होती हैं वो आयोडीन में होती हैं और सबसे वीकर कोवलेंट बॉन्ड भी आयोडीन का होता है। इसका मतलब जो x है वो आयोडीन होगा। ये आ गया आयोडीन। सही है। फिर y जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। सॉरी, y2 जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? क्लोरीन का होगा। तो क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Z2। सही है। और x2 has stronger instantaneous dipole। x2 has stronger instantaneous dipole than Z2। Okay, okay। ओके, और देखो, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br। सही है ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो आई थिंक ये भी ठीक है एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, मुझे ये लगा कि जो x2 है वो आयोडीन होगा ऑब्वियसली। तो मैंने C और D इन दोनों को चेक किया। फिर जो Y है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होना चाहिए। सही है, तो क्लोरीन होता है तो मैंने यहाँ रखा इसको। और Z जो है वो बेसिकली x2 से कम होना चाहिए। या तो वो ब्रोमीन होगा या फिर वो क्लोरीन होगा। क्लोरीन तो ऑलरेडी आ चुका है तो हमने ब्रोमीन ले लिया है यहाँ पर। सही है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question 23. Chlorine reacts with aqueous sodium hydroxide forming two chlorine containing products. Which row shows the oxidation state of chlorine in the products under the conditions stated? अगर cold NaOH के साथ रिएक्शन होता है क्लोरीन का, तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 1 में और वाटर में। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो -1 है और यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। तो कोल्ड NaOH के अंदर +1 और -1 है। तो कोल्ड NaOH में +1 और -1 है, तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि -1 तो है, +1 नहीं है।
अच्छा, अगर मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले रहा हूँ और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोरेट 5 में और वाटर में। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। अब यहाँ पर क्लोरीन क्या है हमारे पास -1 और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। तो -1 और +5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हॉट NaOH से। तो ये है एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है, ओके। और हम सब जानते हैं कि इन रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ओके। एग्जामिनर पूछ नहीं रहा लेकिन मैंने रिपीट कर दिया स्टेटमेंट। A catalytic converter reduces the amount of pollutant in the fumes from a car exhaust. Which row identifies a pollutant and show how it is removed by the action of the catalyst? अच्छा जी, कैटलिस्ट का जो एक्शन है वो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन है कि NO रिड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू और कन्वर्ट हो जाएगा N2 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये है बेसिकली। सो कार एग्जॉस्ट में पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ये गलत हो गया। जाहिर सी बात है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में कहीं भी कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। फिर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड ये हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ये सेंसिबल है हमारे पास। आई थिंक बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो नहीं बना, नाइट्रोजन बना है, इसका मतलब ये भी गलत। फिर वो कह रहे हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। भाई जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन CXHY इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर ये हमने क्लास में करवाया है, तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, राइट। एग्जामिनर कह रहा है हाइड्रोजन, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 25, solid R is added to a solution of ammonium nitrate, okay, ammonium nitrate है मेरे पास, and the mixture is heated, a gas is given off which turns red litmus paper blue. That means कि ये हमारे पास alkaline gas है और आप जानते हैं कि अमोनिया is the only alkaline gas, अमोनिया है ये। तो मैंने आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखवाया है कि when any ammonium salt react with any base or basic oxide, then always ammonia gas is given off. तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन गलत, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, मुझे तो बेसिक ऑक्साइड चाहिए। ये सॉल्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर है सी, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है। सही है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट रिपीट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ भी है, व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट react with any alkali or basic oxide, then always ammonia gas is given off, ठीक है। Next is a skeletal formula is shown. What is the total number of stereoisomers including one? सबसे पहली बात तो ये कि ये कायरल कार्बन है और दूसरी बात ये कि मुझे डबल बॉन्ड में ये दोनों लेने हैं। ये डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि इस डबल बॉन्ड में दोनों के दोनों सिमिलर CH3 इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं लूंगा। तो मैं 2 to the power n का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ स्टीरियोआइसोमर्स डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है और एक कायरल है, तो 2 to the power 3 equals to 8 हो जाएगा, and therefore C is going to be the right answer. Okay, all right. Next, 27. The molecular formula CH3 is represented as anion, cation, and a free radical. Free radical are neutral species. They don't have any charge on it. All right. A species with the molecular
formula CH3 can act as an electrophile, a free radical, or a nucleophile depending on the number of outer shell electrons on the central carbon atom. How many outer shell electrons on the central atom must be represented to act in 3 different ways? अगर CH3 electrophile है तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से represent करूँ. And obviously, 1 bond equals to 2 electrons, so 3 bonds equals to 6 electrons. Okay, तो 6 electrons इसमें आ रहे हैं, ये ठीक है. फिर CH3 as a free radical, अगर CH3 free radical है तो मैं इस तरह से लिखूंगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होगा, और ये एक और इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स. 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं. उसके बाद कह रहे हैं वो CH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा. सही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एंड ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने गेन किया होगा कहीं से, तो बेसिकली ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की फॉर्म में है. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 बॉन्ड्स हैं तो 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो 8 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एंड देयरफॉर A is going to be the correct answer. I hope it makes sense to you. मैं फिर दोबारा से लिख देता हूँ कि 1 bond equals to 2 electron. सही है. तो 3 bonds है तो 6, तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज ऑफ 3 bonds. तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो 6 + 1 होकर कितना हो जाएगा 7. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 + 2 होकर कितना हो जाएगा 8. I hope it makes sense to you. Okay, compound ZC7H13Br has 2 chiral centers. A sample of Z contain all 4 possible optical isomers. Okay, this sample of Z reacts with hot ethanolic NaOH. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है. किसी भी अल्काइल हैलाइड में जब एलिमिनेशन होती है एल्कीन बनता है. ठीक है. To produce a mixture of only 3 isomers, and obviously ये alkene होगा. आगे बढ़ते हैं. 2 of these isomers are optical isomers of each other. Okay, ये important बात है कि भाई आपको optical isomers मिलेंगे. alkene तो मिलेगी लेकिन optical isomers. What could be the formula of Z? काफी टफ है. Let me use let me solve this. जगह कम है हमारे पास तो हम इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. ठीक है, चलो हम सबसे पहले बात करते हैं ए की. ए में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है. अगर आपको याद हो, एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम. तो ये बीटा कार्बन एटम है, ये भी बीटा कार्बन एटम है, इसका भी हाइड्रोजन हमने शो कर दिया. अच्छा, इसके हाइड्रोजन को हम ब्लू से शो कर देते हैं. सही है. अब यहां से एल्कीन बनेगी. ठीक है, 2 डिफरेंट एल्कीन्स बनेगी, एक रेड पेन की वजह से और एक ब्लू पेन की वजह से. पहले मैं लिख दूं फिर उसके बाद मैं एल्कीन दिखाता हूँ आपको. ये बॉन्ड इनटू द रिंग शिफ्ट होगा, ये यहां से चला जाएगा, तो ये आपकी एल्कीन आ गई और ये एज इट इज. सही है, ये एज इट इज. ओके, ये तो रेड से बन गया. ब्लू से ये बॉन्ड इनटू द रिंग शिफ्ट होगा और यहां से ये चला जाएगा, तो आपके पास डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये. सही है भाई. अब आप नोट करो, ये आपका कायरल कार्बन है. आप नोट करो, ये आपका कायरल है. सही है. यहाँ कायरल नहीं है, यहाँ भी कायरल नहीं है, तो यहाँ पर 2 to the power 1 लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आइसोमर्स हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्टिकल. सही है.
तो 2 to the power 1 equals to 2 और ये 1, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3 आइसोमर्स हो गए। ऑप्शन ए से 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं एंड देयरफॉर ए आई बिलीव इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बी को भी देख लेते हैं क्योंकि टोटल 3 आइसोमर्स तो इधर ही से मिल रहे हैं। एक आइसोमर ये मिल गया और कायरल कार्बन की वजह से 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, तो टोटल 3 हो जाएंगे। बट बी को भी देख लेते हैं, बी से रिलेटेड भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओहो, I'm trying to fix it. चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं पर बनाने की। कलर डिफरेंट ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास ये है। सही है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा, अल्फा से जो कार्बन अटैच होता है वो बीटा, तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब यहाँ से एलिमिनेशन करवानी है हमने, तो यहाँ से भी 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। देखो, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये ग्रीन है तो ये ग्रीन यहाँ पर बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब इशू ये है कि कायरल है या नहीं। तो देखो, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो ये 2 to the power 2 equals to 4 हो जाएंगे। उन्होंने कहा था 3 आइसोमर्स है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी को देख लो। आई थिंक ए इज द राइट आंसर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कर देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये है क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जो है वो ये होगा क्योंकि ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से भी आपको 2 मिलेंगी, लेकिन याद रखिएगा कि ये 5 मेंबर्ड कार्बन साइक्लोपेन है। हाँ, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। अब देखो, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ गया। सही है, पर्पल वाला यहाँ बन जाएगा, तो कायरल यहाँ भी नहीं है, कायरल यहाँ पर भी नहीं है, नो कायरल। सही है, नो कायरल, नो कायरल कार्बन। ठीक है बेटे। अच्छा, 2 हैं, ओहो, 2 हैं, 2 हैं। वेट 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 वेट, एक ये भी तो है ना बेटा बॉन्ड। एक मिनट, एक मिनट, ये आ गया, ये भी आ गया। नहीं, यहाँ 2 हैं, एक कायरल ये रहा और दूसरा कायरल ये रहा, तो यहाँ पर 2 to the power 2 कितना हो जाएगा? 4 आइसोमर्स। वो कह रहे हैं आपसे 3, ये भी गलत है। आई थिंक ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसमें एक्चुअली कायरल बनेगी नहीं। उप्स, ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप लगे, तो यहाँ तो नहीं बन सकता, यहाँ से निकल सकता है बस एक। इट्स वेरी वेरी टफ ना। ये है ना, ये वाला हाइड्रोजन निकालें। माय गुडनेस, वेट, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा, और ये एज इट इज। आई डोंट थिंक सो कि कायरल है। डबल बॉन्ड पे कोई कायरल नहीं है, कोई कायरल नहीं है। 2 सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, कोई कायरल नहीं है। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, तो इसमें कोई कायरल नहीं है, नो कायरल। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू किस तरह से वर्किंग करनी है। 29,
The free radical substitution reaction between methane and chlorine involves initiation, propagation, termination stages, which is correct. Involved in the initiation, आपको पता है initiation stage के अंदर हमेशा homolytic fission होती है. अगर आपको याद है क्लोरीन जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, होमोलाइटिक फिजन होती है, इक्वल शेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, होमोलाइटिक फिजन. सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत, ये गलत. अच्छा, रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन प्रोपगेशन स्टेज, मीथेन का केस कह रहे हैं. तो मीथेन के प्रोपगेशन में दो स्टेजेस थे, अगर आपको याद हो. मीथेन क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन करता है और कन्वर्ट हो जाता है HCl में और मिथाइल रेडिकल फॉर्म करता है, राइट. और प्रोपगेशन का दूसरा स्टेज था कि मिथाइल रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्लोरोमीथेन बनाता है और क्लोरीन रेडिकल जनरेट करता है. तो या तो ये बन रहा होगा या ये बन रहा होगा. तो ऑब्वियसली क्लोरीन रेडिकल तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. ये ठीक है, ये ठीक है, और होमोलाइटिक फिजन होगी, हेटेरोलाइटिक नहीं होती कभी भी, which is why B is going to be the right answer. फ्री रेडिकल्स हमेशा होमोलाइटिक फिजन के थ्रू बनते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन के थ्रू नहीं बनते. ओके, सही है. अच्छा, एक 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 चीज मुझे अभी अभी क्लिक हुई है कि अगर हैलोजन कार्बन एटम से तो वो अल्फा, अल्फा से जो कार्बन अटैच होती है वो बीटा, तो ये भी तो बीटा कार्बन एटम है. इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता था, है ना. तो इसका मतलब इस सी के अंदर ना डबल बॉन्ड. एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, लेकिन क्या करें, अभी अभी क्लिक हुआ है मुझे कि वैसे तो वो गलत है, लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए. ये एज इट इज रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा. इसको किस कलर से शो करें हम. एक हाइड्रोजन ये भी है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा. तो ये टोटल बेसिकली 6 आइसोमर्स होंगे. हाँ, टोटल कितने आइसोमर्स होंगे? 6. कायरल कार्बन एटम बेसिकली कितने होंगे? ये 8 आइसोमर्स हो जाएंगे. सही है. वैसे ये गलत है, अभी भी गलत ही है, क्योंकि 8 आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 कायरल कार्बन एटम्स आ रही हैं हमारे पास. सही है. स्टिल रॉन्ग है, ये जहन में रखिएगा. हाँ, अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरी नजर यहाँ पड़ी, तो मुझे क्लिक हुआ कि ये अल्फा है तो ये बीटा है, अगर ये बीटा है तो एलिमिनेशन इस कार्बन से भी होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनना चाहिए. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. The alkene shown reacts with an excess of HBr by an electrophilic addition reaction. What is the major product form? Okay, major product. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. इसका मतलब मार्कोनी कोफ-रूल अप्लाई होगा मेजर प्रोडक्ट के लिए. मार्कोनी कोफ-रूल, मार्कोनी कोफ-रूल क्या कहता है? electrophile yani positive part of unsymmetrical reagent goes to that double bonded carbon atom where we have more hydrogen atoms. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पर हैं? यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है ना. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इन्हीं हाइड्रोजन एटम्स के पास जाएगा. तो इलेक्ट्रोफाइल HBr में से देखो कौन सा होगा? H+ and Br-. So it is going to be your electrophile. इसको हम जनरली E+ के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो अगर मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं तो एक मिनट में पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं पूरा, सो दैट फिर हमें लिखने में आसानी है. ओके, H कहां पर ऐड होगा? H बेसिकली यहाँ ऐड हो रहा है और Br यहाँ ऐड हो रहा है. सही है. यानी H मैंने यहाँ ऐड किया और Br यहाँ ऐड किया. H यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है.
सिमिलरली बी आर यहाँ ऐड होगा, एच यहाँ ऐड होगा, तो पी आर यहाँ ऐड हो गया और एच यहाँ ऐड हो गया। 2 हाइड्रोजन पहले थे, अभी एक और ऐड कर दिया, तो ये CH3 बन गया बेसिकली। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम। 6 कार्बन आइटम है, इसका मतलब हेक्सेन। ओके, और लेफ्ट से भी करो भाई नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब देखो यहां से ब्रोमीन जो है वो 2 और 5 पे आ रहा है, लेफ्ट से करने पे भी ब्रोमीन 2 और 5 पे आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अल्काइल ब्रांच है ना, ये लेफ्ट से कम आ रही है, 2 पर आ रही है, राइट से ये 5 पर आ रही है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑप्ट करूंगा लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 5 डाइब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 5 डाइब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन इज गोइंग टू बी द बी आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दोबारा से सुन लो, सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 2 5 डाइब्रोमो। इस सेकंड कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ब्रांच है, तो 2 डैश मिथाइल, और 6 कार्बन एटम को हम हेक्सेन कह रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 5 डाइब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपकी ये मेजर प्रोडक्ट है, ये याद रखिएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये मेजर प्रोडक्ट ऑब्वियसली जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसके थ्रू मिली होगी, स्टेबल कार्बोकैटायन। मैंने कार्बोकैटायन नहीं बनाया क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखवाया है मार्कोनी-कोफ रूल का कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल goes to that double bonded carbon atom where we have more hydrogen। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया, ब्रोमीन यहाँ पर लगा दिए, प्रोडक्ट बना दी, आंसर आ गया मेरे पास। The diagram shows the structure of two halogen alkanes P and Q। आप नोट करें ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, आप नोट करें ये भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। आप नोट करें कि यहाँ 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 अल्काइल ग्रुप सेम है, फर्क सिर्फ हैलोजन का है, यहाँ CF बॉन्ड है, यहाँ CBr बॉन्ड है। वो कह रहे हैं both compounds can be hydrolyzed, which is correct। कंपाउंड more readily hydrolyzed। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं वीकर बॉन्ड होगा, क्योंकि लॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड है, लॉन्गर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। अच्छा, ये क्या होगा, शॉर्टर बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर वीकर है इजीली ब्रेक होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक। उन्होंने आपसे सबसे पहले पूछा रेडली हाइड्रोलाइज, तो भाई पी जो है वो रेडली हाइड्रोलाइज होगा, ये दोनों गलत। अच्छा, ये दोनों के दोनों टर्शी हैं, तो इसका मतलब SN1 होगा, तो राइट आंसर इज ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं both are 3-degree alkyl halide। So they will undergoes SN1 reaction। Okay, question number 32, the structure of quinine is shown। Quinine can be synthesized by reacting ammonia with dibromo compound X। What is compound X? Okay, kind of challenging, kind of challenging। देखो ये अमोनिया का पार्ट है, राइट, और बाकी ये सारा का सारा इस X का पार्ट है। इसका मतलब ये बॉन्ड बना होगा नया और ये बॉन्ड भी बना होगा। अगर ये दो बॉन्ड नए बने हैं तो इसका मतलब ब्रोमीन इन दोनों बॉन्ड्स के साथ अटैच होगा, है ना। व्हाट वी कैन डू इज कि हम बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, हम बॉन्ड यहां से भी ब्रेक करें। सिंस ये वाला बॉन्ड अमोनिया के साथ बन रहा है, ये वाला बॉन्ड भी अमोनिया के साथ बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड्स
रिएक्ट कर रहे थे अमोनिया के साथ, तो मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया। जब मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास सिचुएशन ये बनेगी, मेरे पास सिचुएशन ये बनेगी, CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक ब्रोमीन मैंने यहाँ अटैच किया और एक ब्रोमीन मैंने यहाँ अटैच किया। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। बेटा एक ब्रोमीन यहाँ लगा था, एक ब्रोमीन यहाँ लगा था, इस ब्रोमीन ने अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और इस ब्रोमीन ने भी अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और 2HBr बना लिया और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो मैंने इसके थ्रू आपको ये बना के दे दिया, ये बना दिया मैंने इसके थ्रू। ये कैसे बनाऊंगा, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे ब्रोमीन है। चलें इसको लिखते हैं फिर हम इस तरह से, ये हो जाएगा Br, then 1 2 3 1 2 3, फिर CH2 टेकन 3, फिर CHBr, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 CH2 हैं, 4 CH2 तो नहीं है, ये तो आपके पास ओ नहीं 4 हैं। एक मिनट एक मिनट, मिस्टेक, यस 1 2 3 4, ओ भाई सही है, मुझसे गलती हुई हुई है, एक मिनट रुको दोबारा से लिखता हूँ। ये Br एज इट इज, Br जिस कार्बन के साथ अटैच है ये CH2, फिर एक और CH2, फिर 4 CH2 है, ठीक है, एक CH2, सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 CH2 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये CH है, CH के साथ Br है तो हमने CH के साथ Br एज इट इज लिख दिया। फिर ये CH2 दो मरतबा और फिर CH3, तो ये हो जाएगा CH2 टेकन 2 एंड देन CH3। ये बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा है, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, ओह गॉड, अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी दे देते हैं। फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, फिफ्थ कार्बन पे ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, क्योंकि 6 का 8 कार्बन एटम्स को ऑक्टेन कहते हैं। तो ये भी गलत और ये भी गलत क्योंकि नाम मैच नहीं हो रहा, ठीक है। 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, सही है। Question number 33. Primary alcohols can be oxidized to aldehydes using either acidified potassium dichromate 6 or acidified potassium magnate 7. The reaction mixture changes color as the oxidizing agent is reduced. What are the color changes? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 है तो ऑरेंज टू ग्रीन होता है, तो ऑरेंज टू ग्रीन ये भी है, ये भी है, ये गलत, ये भी गलत। एसिडिफाइड KMNO4 से रिएक्शन करेंगे तो पर्पल टू कलरलेस होगा, पर्पल टू कलरलेस यहाँ भी है, पर्पल टू कलरलेस यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। दैट्स एन इजी क्वेश्चन, दैट्स एन इजी क्वेश्चन। Question 34. Which reaction has a product that gives a yellow PPT when treated with alkaline aqueous iodine? या देखें, alkaline aqueous iodine का yellow PPT उस वक्त आता है जब आपके पास CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ हो, या फिर CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ हो। अगर इन दोनों में से कोई एक ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है तो फिर तो आएगा, अदरवाइज टेस्ट नहीं आएगा। So, चलें पढ़ते हैं वो क्या कह रहे हैं। 2-chloropropan is warm with dilute aqueous solution of sodium hydroxide। तो अगर मैं 2-chloropropan है मेरे पास, या ये है 2-chloropropan, CH3 CH Cl CH3, ठीक है, ये 2-chloropropan है। अगर मैं इसको NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH OH
CH3 में, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा मेरे पास, इसलिए क्योंकि मेरे पास CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है। तो A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देके येलो प्रेसिपिटेट्स दे देगा। यहाँ से येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे क्योंकि CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है। ये मेरा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं आपसे इथेनॉल इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। तो जब मैं इथेनॉल को हीट करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको कोई आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बी गलत हो गया। मिथाइल इथेनोएट इज एन एस्टर। एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें भी आपको नहीं मिलेगा आइडोफॉर्म का टेस्ट, क्योंकि उसमें ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी। मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। मिथाइल इथेनोएट कह रहे हैं आप, ये है जनाब आपके पास मिथाइल इथेनोएट। सो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा, और आप जानते हैं कि इथेनोइक एसिड में हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट नहीं आता। और मिथेनॉल मिलेगा, और आप जानते हैं कि मिथेनॉल में भी नहीं आता। ये भी गलत, ये भी गलत। सही है, आई बिलीव ए इज द राइट आंसर। उसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रही। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। प्रोपेनॉल है और आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली ये प्रोपेन 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 OH। और प्रोपेन 1 मोल के अंदर आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। ठीक है, प्रोपेन 1 मोल में आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। The skeletal formula of M is shown. M is reacted with an excess of lithium aluminum hydride. Dilute acid is then added. What is the molecular formula of the final organic product? Okay. सबसे पहली बात, एग्जामिनर इज एडिंग एक्सेस S, और फिर उसके बाद एसिड ऐड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको ट्रीट करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन एक्सेस अमाउंट। तो ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट विल टर्न टू COOH, ओ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज CH2OH। उसके बाद आपके पास है CH2, फिर CHOH एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर CH2 है, एंड ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड है आपका, इट विल टर्न टू प्राइमरी अल्कोहल व्हिच इज CH2OH। सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप कि ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। याद रखिएगा कि ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, और आपने इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल में, रिडक्शन की वजह से। ठीक है, ऑलराइट। तो अब जरा अब एसिड ऐड करेंगे, तो एसिड से तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसिड से, बिकॉज एसिड अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, एसिड से रिएक्शन नहीं करते। चलो कार्बन काउंट करो यहाँ से। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। चलो हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो। 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हैं, एंड 1 2 3 ऑक्सीजन है। ये कहाँ बना है, ये डी में बना है। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि वो हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे थे। Oh, good. Question number 36. Which compound forms a precipitate when mixed with 2,4-DNPH reagent and also forms a precipitate when mixed with Fehling reagent? Option A incorrect, इसलिए क्योंकि इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है, नो एल्डिहाइड। सही है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, नो एल्डिहाइड। And option D is also incorrect, no aldehyde.
राइट आंसर इज बी, बिकॉज ये आपका एल्डिहाइड है। तो ये आपका फेलिंग टेस्ट भी देगा और 2,4-DNPH का टेस्ट भी देगा। सही है, ये आपका कीटोन है, ये 2,4-DNPH को दे देगा लेकिन एल्डिहाइड नहीं देगा, यानी फेलिंग नहीं देगा। ये एस्टर है, ना ये 2,4-DNPH देगा ना फेलिंग। ये एस्टर है, ना 2,4-DNPH ना फेलिंग। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये कीटोन है, ये 2,4-DNPH देगा लेकिन ये फेलिंग नहीं देगा। सही है जी। 37, which reaction is redox reaction? Ethane nitrile is heated under reflux with dilute hydrochloric acid. Okay, so yes, acid hydrolysis हो रही है। ये तो एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो वो तो redox नहीं होता। ठीक है, this is acid hydrolysis, so it is not redox। ये तो गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं इथेनोइक एसिड is reacted with aqueous sodium hydroxide। ओके, इसको देख लेते हैं भाई। अच्छा, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो ये भी गलत, क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन कभी भी रीडॉक्स नहीं होता। ठीक है, इथेनोइक एसिड विद सोडियम, चलो इसको देख लेते हैं। ये तुम्हारा इथेनोइक एसिड है, इसको तुम सोडियम से रिएक्शन करवाओगे, ये सॉल्ट बनाएगा, दैट इज सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और तुम जानते हो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, राइट। अब तुम नोट करना, यहाँ सोडियम 0 है, यहाँ पर सोडियम +1 है। इसका मतलब सोडियम जो है वो 0 to +1 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें। सही है। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, तो बेसिकली हाइड्रोजन +1 से +1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब redox हो रहा है। C is going to be the right answer। ओके, अच्छा D क्यों नहीं हो सकता भाई? D इसलिए नहीं है क्योंकि ये एस्टर है और एस्टर आप क्या कर रहे हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। सो ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये redox नहीं है। ठीक है। Oh my goodness, question number 38. This is extremely difficult, guys. Ethyl butanoate is a flavor which with a fruity smell. Which row is correct? Ethyl butanoate. अच्छा, पहले तो मैं ethyl butanate का फॉर्मूला लिखता हूँ। Butanoate comes from butanoic acid, तो CH3 CH2 CH2 COO, ethyl CH2 CH3, ये हो गया ethyl butanoate का स्ट्रक्चर। तो ये आपको अल्कोहल से मिल रहा होगा, एंड ऑब्वियसली ये आपको एसिड से मिल रहा होगा, CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, सो आपको ये दो कहाँ मिल रहे हैं? 1 2 3 4 कार्बन एटम, 1 2 3, तो ये इन दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये गलत और ये भी गलत, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जबकि 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बेसिकली कंपटीशन जो है ना वो ए और बी के अंदर है। अब हमें ये देखना है कि 2.3 ग्राम ऑफ एस्टर इज फॉर्म, अगर हम 0.36 ग्राम ले रहे हैं, द मास ऑफ वाटर फॉर्म इतना, अगर मैं एस्टर इतना ले रहा हूं तो मास ऑफ वाटर इतना बनेगा। ओके, क्वाइट चैलेंजिंग। मास ऑफ वाटर कितना बनेगा? मास ऑफ वाटर कितना बनेगा? ओके, इक्वेशन बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CO2 एंड C2H5, ये हो गया इथाइल ब्यूटानोइड। इसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओह गॉड, जगह नहीं है,
और अल्कोहल में इसको थोड़ा सा नीचे लिया, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। COOH प्लस C2H5OH, इसका MR निकालो, तो इसका MR आएगा आपके पास 116, इसका MR निकालो तो इसका MR आएगा 18। आपको कितना मास दिया हुआ है एग्जामिनर ने? 0.36 ग्राम। 0.36 नहीं है, 0.36 तो फॉर्म होना है 2.32 ग्राम ऑफ एस्टर इस फॉर्म। 2.32 है, तो बताइए ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2.32 into 18 divided by 116 is going to be 0.36, तो ये हो जाएगा 2.32 into 18, oh my goodness, into 18 divided by 116, तो आपके पास मास ऑफ वाटर आ रहा है 0.36 ग्राम। तो ये सही है, and I think A is going to be the right answer. Okay, ये तो ऑब्वियसली ये मास ही नहीं आएगा आपके पास, 0.36 आ रहा है, तो 0.40 तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके पास आए। ओके, दैट्स चैलेंजिंग। ओके, उसके बाद है साइक्लोहेक्सीन एज शोन इन द डायग्राम कैन फॉर्म एन एडिशन पॉलीमर व्हिच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द पॉलीमर। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ए भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि ये जो बीच में बॉन्डिंग है ना, और फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड आ गया, ये मुमकिन नहीं है। लेट्स सपोज ये मैं इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर बना लूं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए सही है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ थोड़ी शिफ्ट हो सकता है, सही है, ऑल्टरनेट होना चाहिए ना। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है वो फॉरन शिफ्ट हो, इसके पास तो नेक्स्ट बॉन्ड है ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता, ये तो बन ही नहीं सकता, क्रॉस लिंक हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड जब नहीं बन सकता तो ये वाला बॉन्ड भी नहीं बनेगा, आई थिंक सी इज द राइट आंसर। यस, सी को मैं कर सकता हूँ, कैसे जरा देखिए, सी के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं अगर आप कहूँ कि भाई ये मेरा स्ट्रक्चर है, राइट, और एक और मेरा स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है, तो अब जरा देखिए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो बेसिकली आपके पास सिचुएशन ये बन रही है, ये ये सिचुएशन बन रही है आपके पास। नहीं, ये अरेंजमेंट गलत हुआ, ये अरेंजमेंट गलत हुआ है, सी के हिसाब से अरेंजमेंट करना है ना, कि मैंने जो सी लिया है वो सही है या गलत। एक मिनट रुको, बनेगा उसी से ही, मैं आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, और ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट हो गया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
तो इसका मतलब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, यहां से ये हटा दिया मैंने, सही है। और ऑब्वियसली इसका जो बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। यस, ये शिफ्टिंग हो सकती है, एग्जैक्टली ये शिफ्टिंग हो सकती है। मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ रखूँ और मैं डबल बॉन्ड यहाँ रखूँ, तो मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वाले डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये तीसरा कोई मोनोमर है उसका डबल बॉन्ड आ रहा है मेरे पास, ऑलराइट। ये कोई चौथा मोनोमर है उसका डबल बॉन्ड आ रहा है मेरे पास, तो ये बन सकता है, कन्वीनियंटली बन सकता है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। मैं एक मरतबा और ट्राई करना चाहता हूँ ताकि ये पूरा बन जाए मुझसे ना। मेरे माइंड में बन गया है ये, बट ये कॉपी के ऊपर ट्रांसलेट हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये है, ये है, ये है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। अब देखो, व्हाट आई वाज सेइंग कि बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो गया, सही। तो यहां से बॉन्ड हट गया, सही। और ये वाला बॉन्ड जो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से हटा दो, सही है। तो देखो ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाली रिंग ये रही, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, एंड ऑब्वियसली एक बॉन्ड और होगा जो कि कंटिन्यूएशन को शो कर रहा होगा, वो किसी तीसरे मोनोमर का होगा, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question number 40, finally, last question. 3 organic compounds are listed: ethanol, propane 1-ol, propane 2-ol. Which compound will have a mass spectrum that contain fragment peak at 43? भाई आपके पास है CH3COH, यहाँ से फ्रैगमेंट आपके पास एक CH3 प्लस का निकलेगा, यहाँ से दूसरा फ्रैगमेंट निकलेगा आपके पास CH3CO प्लस का, और इसका मास टू चार्ज रेशियो होगा 15, और इसका हो जाएगा 15 प्लस 28 is going to be 43। तो ये तो ठीक हो गया, इसमें से 43 मिल रहा है। फिर है आपके पास प्रोपेन 1-ol। तो भाई प्रोपेन 1-ol में से आपको एक फ्रैगमेंट मिलेगा CH3 प्लस का जिसका मास 15 है, एक फ्रैगमेंट मिलेगा आपको CH3CH2 प्लस का जिसका मास 29 है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। एक फ्रैगमेंट मिलेगा आपको, बहुत सारे फ्रैगमेंट होंगे CH3 CH2 CH2 प्लस का, एंड ऑब्वियसली 29 प्लस 14 इज गोइंग टू बी 43। तो 43 का यहाँ से भी मिल रहा है, ये भी ठीक है। और प्रोपेन 2-ol है आपके पास, तो ये है, एक फ्रैगमेंट आपको CH3 प्लस का मिलेगा, आप जानते हैं इसका मास 15 होगा। दूसरा फ्रैगमेंट आपको मिलेगा CH3CH प्लस का, तो 15 प्लस 13 इज गोइंग टू बी 28। तीसरा फ्रैगमेंट ये हो सकता है CH3CH प्लस, और ये हो जाएगा 43, तो ये भी दे रहा है। तो राइट आंसर इज डी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।